Very good morning, students. How are you all? I think all of you are fine. Today we are going to start once again, the carbon and its compound chapter. In this lecture, we are going to discuss about the isomers and isomerization. And next topic we are going to discuss here, that is homologous series. Okay, first of all, see what is isomers and isomerization. Let's see this. This is butane, CH2, and CH3. What is the name of this compound? It has 4 carbon atoms. It means it is but, and it has single bond. That's why we will take ane. It is butane. It has 4 carbon atoms. Okay, and hydrogens are 3, 3, 6, and 4, 10. Made here 4 carbon and 10 hydrogens are here. I can arrange these 4 carbon and 10 hydrogens in another way also, like this. This compound also have 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. 3, 3, 6, 3, 9 or 1, 10. It means it also have same number of carbon and hydrogen, and it also have. Now, what is the difference between these two? Yes, its naming is different. Its name is N-butane. When it has total number of carbon atoms are 4, but all the 4 carbons are not in straight chain. One of the carbon is present inside. That's why we will use the word iso. Okay, iso represent a single side chain. Now total number of carbons are but and ane. It means its name is isobutane. Okay, it is straight chain butane. It means we will use the word N means normal chain. Its name is N-butane. If it has one side and rest, both these compounds have same number of carbon and hydrogens, but the representation means structures are different. In that case, we will use the word isomer. Means these are two isomer of butane. That is N-butane and isobutane. Okay, बेटा. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है. ये 10 के 10 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है. बट देयर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट द केमिकल फॉर्मूला इज सेम. तो द प्रॉपर्टी इन विच a compound have same molecular formula but they have different structures are known as isomer, and this property or this phenomenon is known as isotropy, or you can say isomerism. Now we are in our syllabus, we have 2 isomer, means isomer of butane and isomer of pentane. I have discussed here the isomers of butane. Now I am going to discuss about the isomer of pentane. Now I am going to discuss the isomer of pentane. Pentane, pent means 5 carbons and ene means single bond. It means the compound which have 5 number of carbon atoms with all have single bond. Now pentane, this is a straight chain pentane. We will use the word N-pentane. It has one side. Okay, 4 number of carbon atoms are present in straight chain and 1 is present in side chain. Then we will use the word iso, and for total number of carbon atoms we will use the word pent, and single bonds we will use the word ane. It means its name is isopentane. Now I can arrange this 5 number of carbon atom in another way also. I have taken the 3 straight chain carbons and 2 sides on a single carbon atom. एक ही कार्बन पे मैंने दोनों यहाँ पे साइड चेन्स ली हैं. नाउ अब यहाँ पे 3 स्ट्रेट चेन है, सॉरी 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में
neo. Okay, neo, and total number of carbon atoms are 5. That's why we will use the word pent, and for single bond we will use the word ane. Its name is neopentane. It means pentane have 3 isomer, and pentane, isopentane and neopentane. These are the isomer of pentane. Isomer topic is very important beta. It is very important. बोर्ड में काफी बार क्वेश्चंस आता है, ड्रॉ द आइसोमर ऑफ पेंटेन या ड्रॉ द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन या फिर राइट द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटेन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द homologous series. Suppose I have taken this. What is this? Yes, this is methane. This is ethane. This is propane. Okay, what is the difference in these two? यहाँ और यहाँ इन दोनों में अगर हम देखते हैं, only a number of, what is the difference in these two compounds? There is an increase in 1 carbon and 2 hydrogen. Now compare these two. What is the difference in these two? Again there is a difference of 1 carbon and 2 hydrogen. It means by adding CH2 we can find the next member of the series. This is all the alkanes. All these are alkanes. This is alkane series. This is methane, ethane, propane, butane, pentane. Means if you know one of the compound, then you can identify easily the another compounds by the addition of CH2. Suppose I am taking another example. I am taking the example of alcohol. This is methanol, and I want to know the next member of this methanol. तो हम क्या कर सकते हैं? We can add CH2 and find the next member, that will be C2H5NOH. It means by the addition of CH2, आप CH2 ऐड करते चले जाइए और नेक्स्ट member आप निकालते चले जाइए, वो एक उसी ही सीरीज का मिलेगा आपको जो जिसमें आप ऐड करते जा रहे हैं. आपने ऐड किया था CH3 में, जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, जो जनरल प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड की थी, वही जनरल प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड की भी होगी. प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूलाज में चेंज चलेगा. तो ये आपकी एक सीरीज बनके तैयार हो गई. जैसे मैं नेक्स्ट फिर से ऐड करके दिखाती हूँ आपको. Again it is a member of alcohol series. Again it is also a member of alcohol series. It means in this way, by the addition of CH2 we can find the next member of that particular series. You can find the member of alkane series or alkene series or alkyne series, or you can find out the member of carboxylic series or whatever else. Okay, तो यानी कि अब इन homologous series, यानी कि homologous series हुआ क्या? यानी कि एक series जो बनती जाएगी by the addition of 1 carbon and 2 hydrogen. यानी कि जो एक सीरीज बनके तैयार होगी. कैसे बनके तैयार होगी? जब हम एक मेंबर में CH2 ऐड करेंगे, फिर हमें नेक्स्ट मेंबर मिलेगा, फिर हम उसमें CH2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा, फिर हम उसमें CH2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा. इस तरीके से एक सीरीज हमें मिलेगी जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम रहेंगी, बट आपका फॉर्मूलाज आपके डिफरेंट चेंज होता चला जाएगा, जिसके कारण हमारा डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिलते चले जाएंगे. लेकिन जो एक सीरीज वही रहेगी. तो उस पर्टिकुलर सीरीज को हमने क्या नाम दिया है? होमोलोगस सीरीज, जो कि किससे बनी है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के एडिशन से बनी है. ओके, अब यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स काफी बार पूछी जाती है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज इज कि 2 members of a series is differ by 1 carbon. यानी कि 2 कार्बन्स, 2 कंपाउंड्स के बीच में, किसी भी एक सीरीज के 2 कंपाउंड्स हैं, उनके मेंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 1 कार्बन का. ओके, यानी कि देयर इज एन इंक्रीज इन 1 कार्बन एट सक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ अ सीरीज. एक सीरीज के कंपाउंड्स, हमने सक्सेसिव कंपाउंड्स के लिए, सक्सेसिव का मतलब इसका नेक्स्ट मेंबर, इसका नेक्स्ट मेंबर, इसका नेक्स्ट मेंबर. तो
atoms of hydrogen are present here. Now we will take 2 and this will become 14. It means we will take 14 unit. यानी कि at this and what is the difference between these this and this compound on the basis of molecular mass? Yes, molecular mass में जैसे यहाँ पे और यहाँ पर आपका कार्बन 1 यूनिट इंक्रीज हुआ था और हाइड्रोजन 2 यूनिट इंक्रीज हुआ था, वैसे ही मास 14 यूनिट इंक्रीज होगा। यानी कि हर मेंबर पे 14 यूनिट मास का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। यानी कि देयर आर 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है, देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 1 कार्बन एटम एट ईच कंपाउंड इन अ सीरीज। Second is there is an increase in the 2 units of hydrogen atoms at each compound in a particular series. Yes. Next, third is there is an increase in the mass of 14 unit at each compound in a series. हर compound में 14 unit mass का increment होता चला जाएगा किसी भी एक particular series में। इस तरीके से हमारा टॉपिक फिनिश होता है बेटा। होमोलोगस सीरीज क्या होता है और होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके आपको 3 या 4 एग्जांपल्स आपको बना के बताने। आप एक उठा लीजिएगा होमोलोगस सीरीज किसकी बना देंगे आप, एल्केन की। एक होमोलोगस सीरीज एल्कीन की बना लीजिए, एक अल्कोहल ले लीजिए, एक कीटोन्स की लीजिएगा और एक एल्डिहाइड की लीजिएगा। ये 5 सीरीज आपको बनानी है। 5 सीरीज में 5 आप ले लीजिए 3 मेंबर्स, ठीक है। 3 मेंबर्स ऐड करके आप एक सीरीज बनाते चले जाएंगे। ओके बेटा, इन दिस वे वी have discussed the isomer topic and homologous series. Now there is a properties of alcohol and carboxylic acid is left, and one more topic that is detergents and soaps are left. Okay, यानी कि these topics has been left now in this chapter. For this carbon compound beta, in last lecture I have given you a functional group series. ठीक है, काफी लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स बनाए हैं लेकिन कुछ लोगों के अभी भी गलत जा रहे हैं। आई हैव चेक देयर कि कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत गलत बनाया है, कुछ भी बना रहे हैं, बॉन्ड काउंट ही नहीं कर रहे हैं, कोई 5 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के, कोई 6 बॉन्ड बना रहा है। ये तरीका नहीं होना चाहिए बेटा। मैं फिर से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में काफी मिस्टेक्स देख रही थी आपका और कीटोन्स में, तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स को मैं फिर से यहाँ ले रही हूँ। ये मिस्टेक दोबारा नहीं आनी चाहिए बेटा आपकी। ओके, देखिए बेटे सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स मैं आपको देख रही थी वो क्या देखा है मैंने कि जो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक के यहाँ पे दिस कार्बन ऑल द 3 bonds आर फुलफिल्ड, ठीक है। ओनली 1 इज लेफ्ट दैट फॉर फर्स्ट मेंबर। जब हम फर्स्ट मेंबर बनाएंगे वी विल टेक हाइड्रोजन इन दिस वैलेंसी। ओके, जब हम नेक्स्ट मेंबर बनाएंगे तो वी विल टेक कार्बन चेन। ओके, मींस जो ये वाला कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन को भी काउंट करना है आपको। और आप क्या करते हैं कि ये वाला कार्बन आपने तो छोड़ दिया इसको और यहाँ से शुरू किया, इस कार्बन को आपने मिथ काउंट किया, जबकि ऐसा नहीं होना है बेटा। इस वाले कार्बन को भी आपको काउंट करना है और इसकी काउंटिंग सही का आपको देखना है। तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए मिथेनोइक बनाना है तो आप इस एक हाइड्रोजन को लगा देंगे यहाँ पे। और इस तरीके से आपके पास इस कंपाउंड में एक ही कार्बन होगा, दैट इज नोन एज मिथेनोइक एसिड। नाउ इट हैज 2 कार्बन, दैट विल बी इथेनोइक एसिड। काफी लोगों ने मिस्टेक किया हुआ था। नाउ अब जैसे मुझे पेंटेनोइक एसिड बनाना है तो आई विल टेक टोटल नंबर ऑफ 5 कार्बन एटम्स इन इट, यानी कि 1 इसको काउंट करना है, 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाइड कर रहे हैं इसकी वैलेंसीज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। इन दिस वे ये आपका पेंटेनोइक एसिड बनके तैयार हो गया। ऐसी जो आपने गलती की है वो कीटोन में क्या की है कि आपने कीटोन में यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसीज हुई है, आपने एच लगा दिए काफी सारे बच्चों ने। ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है कि यहाँ पे सी एच करना है। मींस जो कीटोन का पहला मेंबर है वो 3 का एच से स्टार्ट होगा, जबकि कार्बोक्सिलिक में जो फंक्शन हो गया उसका पहला मेंबर मिथेनोइक था, जबकि इसका पहला मेंबर क्या आने वाला है, प्रोपेनोइक एसिड आना है। ये बात ध्यान रखने वाली है आपको, ठीक है। इसकी वैलेंसीज फुल की हमने, इसकी वैलेंसीज फुल की हमने। नाउ इट बिकम्स, इट हैज 3 कार्बन एटम्स, नाउ इट इज प्रो। For single bond
ane, and for this CO we will use the word on, that is propanone. ओके, और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इसको सेकेंड नंबर पर ही देना है, आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। 1 2 अब जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम यू हैव टू इंक्रीज, टेक दिस साइड ओनली, आप इसी साइड लेके चले जाएंगे। नाउ दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, नाउ इट बिकम्स butanol. If I have taken one more carbon, now it becomes pentanol.